Of Indian Accounting Association and Government PG College Obra, I welcome you all who were presented here in the post-budget session. Our today's first speaker is Professor Andy Mathur. Professor Andy Mathur is presently working as professor in the Department of Economics and Director, School of Humanities and Social Sciences, GCRG, University, Jaipur, Rajasthan. Professor Mathur has been a senior faculty member of the Department of Economics, Administration and Financial Management, University of Rajasthan, Jaipur. Beside this, he held administrative position of Director University, 5-year Law College and Director Administrative Services, Pre-Training Center, University of Rajasthan. Professor Mathur is a member UGC Committee on SAP in Commerce and Management. He is member UGC Committee deciding 2F status of the universities. He was also member of UGC Committee for Northeast Scholarship. He is amongst rare professors who have enjoyed full-fledged professorship in the discipline of economics, commerce and management. Professor Mathur is a very senior professor in the National Assessment and Accreditation Council. Professor Mathur is a very uh, great academician for excellence and has justified various academic and administrative positions in has been Faculty of Management, SMVD University, Jammu and Kashmir, Central University of Rajasthan, Kishangarh. He was member of Rajasthan University Syndicate. He was former director UGC Academic Staff College and University Central University Central Library, University of Rajasthan, Jaipur. Professor Mathur is member of Academic Consultant Project and in Wamulla International, Bulimbo, Kenya, which is a reputed research-based semi-corporate non-government organization of Kenya. With these words, I welcome our today's speaker, Professor Mathur, to deliver our today's lecture. Sir, please. Thank you. Thank you, Dwivedi Sahab, for such a nice introduction. Good evening to everybody. We have all met in the pre-budget session, and in the pre-budget session we have discussed that आने वाला जो बजट है वो कैसा होगा, और सबको आकांक्षाएं थी कि शायद चुनाव नजदीक है 5 राज्यों में, उसकी वजह से बहुत से चुनावी शोभ बांटे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इट इज नॉट ए पॉपुलिस्ट बजट. ये ऐसा करना बहुत आसान था सरकार के लिए, लेकिन सरकार ने इस ऑप्शन को नहीं चुना. मैं समझता हूँ इस बात की तारीफ करनी चाहिए, सरकार की तारीफ करनी चाहिए, पार्टी की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इस ऑप्शन को दूर रखा, क्योंकि हम सब लोग समझ गए हैं कि सोर्स का वितरण कोई नारा नहीं हो सकता, चुनावी नारा, और उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होता. लोगों को विकास चाहिए, लोगों को आगे बढ़ता हुआ भारत चाहिए, न कि फ्री सब्सिडी चाहिए या फ्री गेहूं चाहिए या फ्री चावल चाहिए. तो मैं समझता हूँ ये डायरेक्शन बड़ा अच्छा, और इसके लिए सरकार की तारीफ की जानी चाहिए कि चुनाव का मौसम होते हुए भी जो है वो चुनावी सोप्स नहीं बांटेंगे. दूसरी बात, अगर इंडिकेटर्स को देखा जाए, फिस्कल इंडिकेटर्स को देखा जाए, तो फिस्कल डेफिसिट पिछले साल का 6.9% और इस साल का 6.4% ऑफ जीडीपी रखा गया है. हालांकि ये एफआरबीएम के वायदों से काफी आगे है, क्योंकि एफआरबीएम एक्ट ने सिर्फ 3% डेफिसिट की बात की थी जीडीपी के, लेकिन अब क्योंकि संभव नहीं रह गया है, पेंडेमिक के 2 साल निकले हैं जिनमें भारी भरकम खर्चा हुआ है, वैक्सीनेशन पर भारी भरकम खर्चा हुआ है, और इसलिए जायज भी लगता है कि जो खर्चा है, स्पेशली फिस्कल डेफिसिट है, वो सही कंसोलिडेटेड लगता है 6.4% पर. फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होने या घाटा होने, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने माइक बंद कर लें प्लीज, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है. अपने माइक बंद कर लें प्लीज.
6.4% जो घाटा है जीडीपी का, इससे इन्फ्लेशन होगा। मैंने प्री बजट सेशन में भी कहा था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, उसके बैड इफेक्ट्स भी होते हैं, राइट इफेक्ट्स भी होते हैं। एंड इफ डेफिसिट इज मोर, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी इन्फ्लेशनरी। बट ये इन्फ्लेशनरी नहीं होने के कारण क्या हो सकते हैं, क्योंकि कैपेक्स बहुत ज्यादा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 35.4% से बढ़ाया गया है, जिससे पैदावार बढ़ेगी, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे इनकम बढ़ेगी, और उस बढ़ी हुई इनकम की वजह से मैं समझता हूँ, बढ़ी हुई प्रोडक्शन की वजह से इट विल नॉट बी इन्फ्लेशनरी, ऐसा मेरा मानना है। वास्तव में क्या होगा, आज बजट एस्टिमेट की बात करें, रिवाइज आंकड़े जो है डेफिसिट के बताएंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। रेवेन्यू डेफिसिट पिछले साल 4.7% था, इस बार 3.8% एस्टिमेट किया गया है। रेवेन्यू डेफिसिट का कम होना हमेशा अच्छा है, क्योंकि रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कभी भी प्रोडक्टिव नहीं होता, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव होता है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है। प्राइमरी डेफिसिट जो है वो पिछले साल 3.3% था और अब 2.8% है। तो फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में क्या फर्क है? इनफैक्ट बजट के घाटे को कम बताने के लिए एक नई टर्म इजाद की गई कुछ सालों पहले, जिसका नाम प्राइमरी डेफिसिट। नहीं तो मैं बजट पे एनालिसिस 30 साल से करता आ रहा हूं, प्राइमरी डेफिसिट नाम की टर्म ही नहीं थी बहुत पहले, ये भी पिछले 7-8 सालों में टर्म आई है। तो प्राइमरी डेफिसिट इसलिए बताया गया जिससे कि बोरोइंग्स में से इंटरेस्ट बर्डन को निकाल दिया जाए। सो अगर आप फिस्कल डेफिसिट में से डेट सर्विस बर्डन को निकाल दें तो वो प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है, और ये प्राइमरी डेफिसिट 2.8% रह गया, जिससे फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े कम नजर आने लगे। अदरवाइज इसका इस प्राइमरी डेफिसिट को बताने का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ ये बताता है कि हमारी बोरोइंग्स कितनी है। इट डजंट टॉक्स अबाउट द इंटरेस्ट व्हिच वी आर पेइंग ऑन द बोरोइंग्स, व्हिच इज ए वेरी हाई अमाउंट। टैक्स रेवेन्यू हमारी जो ग्रॉस है पिछले साल 10.8 लाख % थी जीडीपी की, इस बार 10.7 लाख % है जीडीपी की। नॉन टैक्स रेवेन्यू 1.4 और अब इस साल 1 है, जीडीपी की 1%। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है वो जीडीपी का 60.2% होने को है, जो पहले सिर्फ लगभग 59.9% था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा 18 लाख करोड़ रहा और कैपिटल एक्सपेंडिचर 20.75 लाख करोड़ है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा होना ये बताता है कि हमारे रास्ते ठीक हैं, हम रोजमर्रा के खर्चों पर कम खर्च कर रहे हैं, गैर विकासात्मक खर्चों पर कम खर्च कर रहे हैं, और विकासात्मक खर्चों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा होना बहुत अच्छा है। सब्सिडीज पर, जो फूड, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम सब्सिडी है, उस पर 3.36 लाख करोड़ रुपए 30 था, 22-23 में 3.18 हुआ है, 20-21 में 3.36 था। जीडीपी की जो वृद्धि दर है, जस्ट ए मिनट, hello, I am right now busy, talk to me after 1 hour and 30 minutes, right? I am in the budget session. Then जो फाइनेंस कमीशन है उसका, वित्त आयोग का जो राज्यों को बंटवारा होता है रिसोर्सेज का, आर्टिकल 275(1) ये कहता है कि राज्यों को भी बंटवारा होना चाहिए रिसोर्सेज का, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो राज्यों से इकट्ठे किए जाते हैं। टैक्स रेवेन्यू जीएसटी की राज्यों से आती है। तो 1.93 लाख करोड़ जो है वो 2022-23 में राज्यों को बांटा जाएगा। सरकार की जो खर्च करने की नीति रही है, बेसिकली जो द पॉलिसी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज बीन प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, कि खर्चा उस पर किया जाए जिसकी उत्पादन क्षमता अधिक हो, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी हो जिस खर्चे में, खर्चा ऐसा नहीं हो जिसमें प्रोडक्टिव एफिशिएंसी नहीं हो। इट मींस द एक्सपेंडिचर शुड बी डन ऑन सच मशीन्स व्हिच क्रिएट्स अदर मशीन्स, जो इनकम जनरेटिंग एक्सपेंडिचर हो, जो एक्सपेंडिचर को बढ़ाने वाला एक्सपेंडिचर नहीं हो, एंड देन व्हिच प्रोवाइड्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने संसाधन उपलब्ध है उनका अनुकूलतम उपयोग हो पाए, इस बात की बात की गई है।
देन इस बजट में कहा गया है कि 4 की पॉइंट्स की बात की गई और 9 इंजन्स की बात की गई है इसमें, और उन 4 की पॉइंट्स में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो गति शक्ति का है। तो गति शक्ति इज अमर्जिंग एज चेंज एजेंट, और कितनी गतियों की बात इसमें की गई है। इसमें रेल की बात है, इसमें रोड की बात है, इसमें एविएशन की बात है, इसमें शिपिंग की बात है, इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट की बात है, इसमें टेलीकॉम सेक्टर के स्पीड की भी बात है, 5G स्पेक्ट्रम की भी बात है। सो गति शक्ति इन टाइम्स टू कम आई बिलीव विल इमर्ज एज एजेंट ऑफ चेंज। अर्थव्यवस्था को अगर गति आएगी तो इस गति शक्ति प्रोग्राम से आएगी। इसमें प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के लिए 80 लाख नए घर गरीबों के लिए अफोर्डेबल हाउसेस बनाए जाएंगे, इसकी बात की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, प्रोडक्टिविटी की बात की गई है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है। जो 2022-23 के बजट में स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज हमारी रखी गई हैं, उनमें पहली प्रायोरिटी है कैपिटल स्पेंडिंग, कि पूंजीगत व्यय जीडीपी का 35.4 में 35.4% की वृद्धि की गई है। 35.4% इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बढ़ना ये बताता है कि नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा आम जनता को मिलेगा। ये पहली प्रायोरिटी। प्राथमिकताएं इस तरह से तय की गई हैं क्योंकि रिसोर्सेज हर संस्था के पास सीमित होते हैं और सीमित संसाधनों में प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती है। इकोनॉमिक्स इट इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। लियोनिन जो 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 थे, उन्होंने बहुत पहले एल रॉबिन्स ने कह दिया था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, हाउ बेस्ट चॉइस यू मेक। There are unlimited human wants, there are limited resources, and there is alternative use of resources. But when the resources have alternative use, where to use that resource, that is the important point, and that talks about priorities in the choice making. दूसरी important priority है integrated and coordinated planning. गति शक्ति के लिए हमने एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग की है, चाहे रेल हो, चाहे रोड हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे 5G स्पेक्ट्रम हो, चाहे शिपिंग हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग की बात इसमें की गई है जो एक सही प्राथमिकता को दर्शाता है। तीसरी बात प्रायोरिटाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, सस्टेन्ड ग्रोथ की बात इसमें है और एक्सपेंडिचर को हमने प्रायोरिटाइज किया है कि कौन सी हमारी प्राथमिकता है, जिसमें हेल्थ हमारी प्राथमिकता है, एजुकेशन हमारी प्राथमिकता है, ड्रिंकिंग वाटर हमारी प्राथमिकता है, सैनिटेशन हमारी प्राथमिकता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हमारी प्राथमिकता है। जब नोबेल प्राइज मिला था अमर्त्य सेन को, अमर्त्य सेन की किताब आई थी इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो अमर्त्य सेन ने कहा था कि आप रिफॉर्म्स करें, मुझे दिक्कत नहीं है, आप ग्लोबलाइजेशन लाएं, मुझे दिक्कत नहीं है, आप मार्केट की साइज बढ़ाएं, मुझे दिक्कत नहीं है, बट there may be downsizing in every area, government should be minimum, but there are certain areas like health, sanitation and education where government cannot forget its responsibility. और मैं समझता हूँ इन सब प्राथमिकताओं जो अमर्त्य सेन ने 1998 में नोबेल प्राइज लेते हुए कहा था, उस पर हमारा ध्यान, उन प्राथमिकताओं पर हमारा ध्यान गया है। जो अमर्त्य सेन हाशिए पर आ गए थे वो वापस मेन स्ट्रीम में आ गए हैं और उसकी वजह से प्राथमिकताएं, सही प्राथमिकताएं तय हुई, क्योंकि ग्रोथ तो हो रही है बट ग्रोथ इज विदाउट ह्यूमन फेस, मानवीय चेहरा गायब है ग्रोथ का। और जब हेल्थ और एजुकेशन और ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन और रूरल डेवलपमेंट पर एक्सपेंडिचर होगा तो उसका मानवीय चेहरा वापस, ग्लोबलाइजेशन का मानवीय चेहरा वापस आएगा। देन मोबिलाइज लार्जर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। आप देखिए अकेले जनवरी 2022 में 1,40,1.40 लाख करोड़ जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। तो टैक्स बायोन्सी की वजह से और सिंप्लीफाइड एंड इंप्रूव्ड कंप्लायंस ऑफ टैक्स सिस्टम एंड मोनेटाइजेशन ऑफ असेट्स, इनकी वजह से टैक्स कलेक्शन तेजी से बढ़ा है, जिसका फायदा
क्योंकि टैक्स कलेक्शन से जो पैसा आएगा वो पैसा आखिर विकासात्मक कार्यों पर ही तो खर्च होगा। उसी से तो नरेगा के लिए रिसोर्सेज आएंगे, उसी से पावर्टी रेडिकेशन के रिसोर्सेज आएंगे, उसी से इनइक्वलिटीज को मिटाने के रिसोर्सेज आएंगे, उसी से सब्सिडीज के लिए पैसा आएगा, उसी से जो है जनधन योजना के लिए पैसा आएगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी इज एनहांसिंग क्रेडिबिलिटी। साख बढ़ी है सब सरकार की, और क्यों बढ़ी है? क्योंकि पॉलिसी की कंसिस्टेंसी रही है, पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी रही है, लगातार हमारी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप देखिए, लोग सोच रहे थे मध्यम वर्गीय लोग कि शायद टैक्स रेट्स बड़े जो है वो कम हो जाएंगी और स्लैब्स में चेंज आएगा, बट कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज इज देयर, वेदर इट इज फॉर मीडियम क्लास, वेदर इट इज फॉर सैलरीड क्लास और इट इज फॉर बिजनेस क्लास। दैट कंसिस्टेंसी बिल्ड्स द ट्रस्ट। इससे विश्वास पैदा होता है, ट्रस्ट पैदा होता है, और ट्रस्ट और विश्वास पैदा होने से ऑनेस्टी आती है, टैक्स इवेजन कम होता है। तो क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। देन एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर इसी वजह से बढ़ पाया है, एंड दिस विल रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन मार्केट बोरोइंग्स। देन छठी प्रायोरिटी है होलिस्टिक अप्रोच टू एनहांस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच आई है, सब इंटीग्रेटेड अप्रोच आई है, मिलीजुली अप्रोच आई है, जिसकी वजह से एक साथ अटैक पूरी एरिया पर किया जाएगा और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस किया जाएगा। एफर्ट्स ऑफ स्टेट फॉर कैपिटल स्पेंडिंग, जो कैपिटल स्पेंडिंग न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लिए प्रोविजन रखा है, बल्कि स्टेट्स को भी कैपिटल स्पेंडिंग के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 10 लाख करोड़ रुपया हर स्टेट को दिया है। देन इफेक्टिवनेस ऑफ कैश मैनेजमेंट। ये इफेक्टिवनेस कैसे आएगी? जस्ट इन टाइम रिलीज, कि जब जरूरत है उस वक्त रिलीज किया जाए पैसा। देन जस्ट इन टाइम रिलीज, सब्सिडी कब देनी चाहिए? जब जरूरत है। संसाधन कब दिए जाने चाहिए? जब जरूरत है। एंड देन इट शुड बी, सब्सिडी शुड बी टारगेटेड। किसको देनी है? इट शुड बी टारगेटेड, इट शुड बी टाइमली, कब देनी है। एंड देन इट शुड बी टेम्पररी, परमानेंट नहीं होनी चाहिए कोई भी सब्सिडी। इट शुड बी टारगेटेड, इट शुड बी टेम्पररी, एंड न केवल टारगेटेड और टेम्पररी हो, बल्कि सब्सिडी को कब वापस लेना है उसको, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। उसका टाइम भी सही होना चाहिए, जस्ट इन टाइम रिलीज होना चाहिए उसके लिए, कि कब मदद चाहिए एमएसएमई को, कब मदद चाहिए संसाधनों की, तो उन संसाधनों की मदद राइट टाइम पर की जाए। So it should be timely, it should be targeted, and it should be temporary. परमानेंटली आप सब्सिडी देंगे तो उनकी आदत ही पड़ जाएगी सब्सिडी के भरोसे रहने की। So this is about the priorities. अगर हम लोग सब टीचर्स हैं, अगर ये बात की जाए कि शिक्षा पर क्या हुआ है, और शिक्षा पर देखा जाए तो आप देखेंगे कि 1.04 लाख करोड़ शिक्षा के लिए एलोकेशन है, जो पिछले साल के एलोकेशन से 12% ज्यादा है। जबकि पिछले साल जीडी जो है वो 6% घटा था एलोकेशन, इस बार 12% बढ़ा है। दूसरी बात, डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की गई है कि वर्ल्ड क्लास डिजिटल यूनिवर्सिटी हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर बनाई जाएगी। और टीवी चैनल्स के लिए बात की गई है 1 क्लास 1 चैनल, और उसके लिए जो है 200 टीवी चैनल्स खोलने की बात की गई है, सेटअप करने की बात की गई है। पीएम ई विद्या प्रोग्राम को एक्सटेंड करने की बात की गई है। 750 वर्चुअल लैब्स बनाने की बात की गई है, और 75 स्किलिंग ई लैब्स की बात की गई है। शिक्षा में जो ये बजट किस तरह से शिक्षा को प्रभावित करेगा, ये बात मैंने आपको बताई कि इसमें एलोकेशन 12% बढ़ा है। और डिजिटल यूनिवर्सिटीज की बात है, और गांव में रीजनल लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाएगी, और गांव में ही रह करके पढ़ सकेगा रीजनल लैंग्वेज में। और शुरुआत रूरल सेक्टर से की गई है, शहरों से नहीं की गई है, गांवों से की गई शुरुआत। तो अगर एमएसएमईज के लिए इसमें ECLGS स्कीम जो है, जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो है, उसकी गारंटी की बात की गई, और 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उसके लिए किया गया, जिसका फायदा छोटे उद्योगों, मंझले उद्योगों को और मीडियम सेक्टर के उद्योगों को मिलेगा। देन जो और इम्पोर्टेंट बात है उनमें क्रिप्टो की बात आई है और डिजिटल करेंसी की बात आई है। डिजिटल करेंसी आरबीआई लाएगा। अभी हम जो आजकल पेटीएम कर रहे हैं, ये डिजिटल करेंसी है बेसिकली, लेकिन करेंसी नहीं है, ये एक सिस्टम है। लेकिन अब
सरकार एक डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रही है और डिजिटल रुपया लाया जाएगा आरबीआई के द्वारा, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात की गई है कि साहब सरकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पहले से ही क्रिप्टो करेंसी इस टेक्नोलॉजी से चल रही है। नाउ व्हाट इज दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? नाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए कहा जाता है कि ब्लॉकचेन कैन बी डिफाइंड एज चेन ऑफ ब्लॉक्स दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन। हर ब्लॉक में कुछ इंफॉर्मेशन होती है। कौन सी इंफॉर्मेशन? किसने रिसीव किया, किसने खर्च किया और किसने अर्न किया। आपने परचेज किया तो आपने खर्च किया, और जिसने बेचा उसने अर्न किया है। तो ये ब्लॉक्स में, हर ब्लॉक में ये इंफॉर्मेशन होती है जिसका एक एक पासवर्ड होता है या जिसको हैश कहा जाता है, और बहुत सारे ब्लॉक्स को मिलके एक चेन के माध्यम से सारे ब्लॉक्स को जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के रूप में चलाया जाता है। इसमें साइबर अटैक की जो है वो संभावनाएं कम है। कोई दूसरा इसको जो है वो क्योंकि हर ब्लॉक का अलग अलग हैश है, इसलिए कोई दूसरा इसमें अटैक करेगा भी तो एक ब्लॉक पे कर सकता है, सारे ब्लॉक्स पे नहीं कर सकता। सो दैट इज इन दिस ब्लॉकचेन टू जो है, समटाइम द टर्म इज यूज्ड फॉर बिटकॉइन ब्लॉकचेन और द अदर ब्लॉकचेन्स, एंड द ब्लॉकचेन कुड नॉट बी रन विदाउट द इंटरनेट। इंटरनेट जरूरी है इसके लिए, ब्लॉकचेन के लिए। देन इसमें ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, ये मैंने ब्लॉक्स के माध्यम से और कोऑर्डिनेटेड चेन के माध्यम से इसका काम होगा। इसमें फ्रॉड प्रिवेंशन रहता है, सिक्योरिटी रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, रिलायबिलिटी रहती है, टाइम रिडक्शन है, इसमें ट्रस्ट किया जा सकता है। एंड देन इसका एप्लीकेशन न केवल करेंसी में बल्कि बहुत से और एरियाज में भी इसका एप्लीकेशन है। तो लेंडर्स यूज में भी है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में भी यूज की जा सकती है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। इसकी कॉस्ट हायर है, स्लोअर ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है, रिस्क भी है, एरर की रिस्क भी है। अगर आपसे गलती हो जाए तो उस गलती को सुधारना मुश्किल है। लेकिन ये टाइम स्टाम्प की तरह काम करता है कि आज आपने जो कर दिया उसको बदल नहीं सकते, आप उसको टेम्पर नहीं कर सकते, बैक डेट में चेंज नहीं कर सकते, चीज को करेक्शन नहीं कर सकते उसमें। सो इट वर्क्स एज ए टाइम स्टाम्प, फ्रीज हो जाती है चीज आज जो किया आपने, एंड नोबडी कैन करेक्ट इट, नोबडी कैन एंटर इट, नोबडी कैन टेम्पर इट। कोई बैक डेट में करेक्शन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ये इसकी लिमिटेशंस भी हैं। तो कुल मिला के मैं तो ये कहूंगा कि जो बजट है ये एक इसकी प्राथमिकता है, सही है। रिसोर्सेज हर संस्था के पास सीमित होते हैं, चाहे कोई देश हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, लेकिन सीमित संसाधनों के सही उपयोग की बात इसमें कही है। लेकिन इतना और कहूंगा मैं कि आम आदमी जो है उसको बहुत भरोसा था, आम आदमी निराश हुआ है, आम आदमी को लगा है कि मेरे लिए क्या है इसमें, तो उसकी झोली खाली रह गई है। मध्यम वर्ग को भी लगाया, जो सैलरी क्लास है उसको भी लगाया कि मेरे को क्या मिला है, तो उसको भी लगाया कि मेरी झोली भी खाली रह गई है। लेकिन रोजगार के अवसर काफी बढ़ेंगे अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर सही दिशा में खर्च किया गया तो, और स्किल्स बढ़ेंगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ चाहे सीधे फायदा ना हो, लेकिन विकास जब होगा, ग्रोथ जब होगी, तो ग्रोथ विल ट्रिकल डाउन, and when it will trickle down, it will go to common man, and then common man will be benefited by that. The earning of the common man will increase. But at present, per capita income has gone down, saving rate has gone down, investment rate has gone down, और इसलिए आज स्थिति काफी ब्लीक है। पर ऐसा सोचना चाहिए कि आने वाला समय अच्छा होगा और पूंजीगत व्यय से हमारे देश की तस्वीर बदलेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रोफेसर एन डी माथुर सर for enlightening us a great knowledge idea about budget। और सर ने जैसा हमें बताया कि आम आदमी को प्रत्यक्ष रूप से तो कोई लाभ नहीं हुआ है, लेकिन अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी फायदे हैं वो आम आदमी तक जरूर पहुंचेंगे।